So the complaint is about criminal defamation. You all know that Rahul Gandhi had went to England last month, and in one of the gatherings, he had commented that Veer Savarkar wrote in his book that he, along with his 5-6 friends, were beating a Muslim person, and Veer Savarkar enjoyed it. So that remark is actually an insult, because the incident that Rahul Gandhi is talking about is imaginary. Savarkar ji has never written such things in his book, and if you talk about his Hindutva or his ideology, he was a rational person. Even he demanded that no person can be seen from the perspective of caste, religion, and everyone should be treated equally. That was his vision. Even for Indian Muslim community, he tried and he advised for them to be practical, and his approach towards every sect of the society was equal. So if anyone has read his literature, he won't dare to comment on Savarkarji in such language, but Mr. Rahul Gandhi did, and that is like an insult to us. We have been hearing a lot from him and some of his followers about so-called petitions and pensions, what they call it. Those were actually not. They were sustenance allowance, and it was clemency petitions that he wrote. So at some point of time, we felt that enough is enough now. There has to be some check on this, and hence we have reached honorable court. Let the court decide and provide the best decision. So Rahul Gandhi seems to be doing this again and again. Earlier also there is also a case is going on in Thane court against him for the same defamatory. What you are saying? What is your comment on the Rahul Gandhi making comments against the Veer Savarkar again and again? I think he has not studied about Veer Savarkarji. He has not read his literature, and to gain some political mileage out of it, he is commenting or he is making baseless allegations. That's the only thing, because for n number of months we have been seeing that he is commenting like this, and there is no evidence as such he is providing. So the allegations are baseless and purely to gain political mileage. So over your complaint, what court has said today? They have given us a next date of 15th of April. My verification is done, so we need to go to court on 15th of April, and I'll give you the next update on the same day. You have also submitted some evidence or some videos? Absolutely. The video I am talking about is available on Rahul Gandhi's YouTube channel. We have made a CD of it. There is one news cutting about the same thing, so we have submitted enough evidences. कोर्ट में शिकायत दर्ज की है राहुल गांधी के खिलाफ, जिस तरह वीर सावरकर जी पे कमेंट कर रहे हैं, क्या है आपकी शिकायत में और आपने क्या शिकायत की? लास्ट मंथ राहुल गांधी ग्रेट ब्रिटेन गए थे और उन्होंने एक गैदरिंग के दरमियान सावरकर जी का एक कोट किया, या सावरकर जी का नाम लेके उन्होंने कहा कि सावरकर जी ने उनके बुक में लिखा है कि वो और उनके 5-6 साथी मिल के किसी मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे थे और सावरकर जी को उससे बड़ी खुशी हो रही थी। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि सावरकर जी ने कौन से भी अपने पुस्तक में ऐसी बात लिखी नहीं है। दूसरी चीज़, राहुल गांधी जिस प्रसंग का उल्लेख कर रहे वो पूर्णतः काल्पनिक है, ऐसा कोई प्रसंग हुआ ही नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि सावरकर जी बड़े ही रैशनल थे, उनके विचार विज्ञाननिष्ठ थे और सभी समुदायों को उन्होंने उपदेश किया था कि आप धर्म ग्रंथ का आदर कीजिए अपने अपने घरों में, लेकिन आपको आगे चलना पड़ेगा। भारतीय मुस्लिमों को भी उन्होंने आह्वान यही किया था। सबका
उसमें ही कल्याण है जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर एक चीज़ में रखोगे। उनका ये भी कहना था, जब भी आप एक व्यक्ति की तरफ देखोगे तो उसका धर्म, उसकी जात देखो ही मत, उसके गुण देखो और सभी को एक समान से आप ट्रीटमेंट दो। तो ऐसी व्यक्ति जिन्होंने भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में इतना बड़ा योगदान दिया, भारतीय राजनीति में इतना बड़ा योगदान दिया, वो व्यक्ति इतने नीचे स्तर में जाके कुछ लिखे, ये संभव नहीं है। तो मेरे विचार से राहुल जी ने उनका कोई भी वाङ्मय या कुछ भी लिखा जो है उन्होंने पढ़ा नहीं है, और पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, केवल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए वो ये बेसलेस एलिगेशंस कर रहे हैं। कोर्ट ने आपके इस कंप्लेंट पर क्या कहा है जो आपने जो पिटीशन मूव किया है? कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने हमें नेक्स्ट डेट दिया है 15 अप्रैल को। मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है और 15 अप्रैल को मुझे केस नंबर और आगे के अपडेट्स मिल जाएंगे। सर, राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा ही एक मानहानि का दावा जो है वो भिवंडी कोर्ट में की गई है जी। बार बार ऐसे कमेंट्स उनकी तरफ से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप वीर सावरकर जी आपके पूर्वज हैं, इस तरह के जब भी कमेंट करते हैं तो क्या आपकी सोच रहती है, क्या आपके मन में चलता है? बहुत दुख होता है मुझे कि किसी ने अगर बिना पढ़े बिना सोचे ऐसे वक्तव्य किए। तो कई दिनों से राहुल गांधी ऐसे ही वक्तव्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध पहले एक मुकदमा चल रहा है भिवंडी के कोर्ट में, और कोर्ट ने शायद डिसीजन भी दे दिया है कि आगे जब तक कुछ ना हो उस केस का, तब तक वो उस बारे में बात नहीं कर सकते। तो कैसा है कि अगर कोई व्यक्ति अध्ययन करे और उसके ऊपर टीका टिप्पणी करे तो ठीक है, लेकिन अध्ययन ना करके टीका टिप्पणी करना, उसका एक ही उद्देश्य रह सकता है कि किसी समुदाय को खुश करना या अपनी जो वोट बैंक है उसकी सिंपैथी के लिए और पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए ये प्रयास चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।